start with the greatest name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Assalamu alaikum. Dear friends, today we are going to discuss the most important and most difficult as well as the most easiest topic of the political science. This topic is related to philosophy of law as well as to the sociology. So it is requested to you all to please pay fully concentration to this video. Starting the topic, but before starting the topic, I shall have a background of this lecture. Dear friends, in older times there used to be a small states which were administered by a single man and individual living at a center. He used to administrate the whole state. But modern states are too vast and having the too much population and territory, it is difficult for a person to administer the whole state sitting at a center by an individual. So in order to administrate a country, to administrate his city or a state, we may call that, he forms a local government. There became a two governments to administrate a state, local and central government. Central government belongs to him while the local government was made to administrate a city or a state. Now, what is unity and what is federation? How these two words are interrelated? Let me clear you. Unity was a form of state and federation is also a form of state. This local and central government formed two states, two forms of state, unity form of state and federation form of state. The unity form of state is the form of state in which all powers belong to a central government, whereas the federation is a form of government in which the sovereign powers, in which the administrative powers are divided into federating units and federal government. So starting today's topic, today we will be discussing the unity, merits of unity, demerits of unity, federation, merits of federation and demerits of federation. Starting with the unity. Unity is a single and central government, as I told you. Unity is a single government, is a central government. All powers belong to a single central government. It has a flexible constitution. Its constitution can be changed without any kind of rigidity. It has a centralization of powers. All powers belongs to a unit. In unity, all powers belongs to a central government, whereas the local government only exercise the delegated powers by center. It has a uniformity of law. Whenever the law is made, a law is for complete state. It has no diversity with a city, with a particular person, with anything else. But there is a uniformity of law. No distribution of powers. There can be no distribution of powers. All powers belongs to a single person that we call a central government. It do not distribute its powers to any. It do not gives the powers to the local government, but it does delegates the powers to a local government to administrate the state. अब वो उसकी मर्जी होती है कि कितने पावर्स उसको देना चाहती है, कितने पावर्स उसको नहीं देना चाहती. ये जो पावर्स हैं ये बिलोंग करते हैं इस एक यूनिटी के, जो हम कह सकते हैं कि लोकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होते हैं और ये डेलीगेट करती है लोकल गवर्नमेंट को. वो कितने डेलीगेट करती है, कितने नहीं करती है, वो उसकी मर्जी होती है. Coming towards the merits and demerits of unity. What are the merits and what are the demerits of unity form of state? First of all, demerits of unity form of state. Provincial government do not take interest in governing. अब जाहिर सी बात है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, उसके पास अगर कोई पावर ही नहीं होगा तो वो इंटरेस्ट क्यों लेगी? बिकॉज डू नॉट हैव any sort of power. These powers are delegated to it by a central government, and central government is well wished to give him a power or not. It is the supremacy of all powers. All powers belongs to a central government. It do not delegate, or it delegates the powers to a local government. It's on his wish. Coming towards next point, diversity of culture and language tradition. If a person is sitting at one place, he cannot observe all individuals of his state. He cannot be well know of his peoples of his culture, the people's language of his peoples and the tradition of his peoples that are living in his state. अब जाहिर सी बात है, अब वो फेमिलियर नहीं होगा, उसे कैसे पता चलेगा कौन से लॉज हैं जो मुझे बनाने चाहिए अपनी स्टेट्स में, कौन सी लैंग्वेज मुझे रखनी चाहिए, कौन से ट्रेडिशंस हैं, कौन सी लॉज को मुझे इन्फोर्स करवाना चाहिए, कौन से लॉज को इन्फोर्स नहीं करवाना चाहिए.
तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि उसे ये पता नहीं होता कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस हैं, वो इस वजह से प्रॉपरली गवर्न नहीं कर सकती स्टेट को। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, यूनिटी इज अ गुड फॉर स्मॉल कंट्रीज। However, it's a narrower point in my point of view, but defining this point here ahead I would be telling you how is it a narrower point. Unity is good for smaller countries. जो यूनिटी फॉर्म है, यूनिटी फॉर्म ऑफ स्टेट है, वो ये पॉइंट से मतलब है कि यूनिटी फॉर्म ऑफ स्टेट जो है वो स्मॉल जो कंट्रीज होती हैं, स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल टेरिटरी के साथ जो स्टेट्स होती हैं उनके लिए बेहतर है, जबकि जो लार्ज कंट्रीज हैं, जो लार्ज स्टेट्स हैं, उनके लिए बेहतर है कि वहाँ फेडरेशन होनी चाहिए, फेडरल स्टेट फॉर्म होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्लो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स। ये जो यूनिटी होती है ये स्लो होती है टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि अब सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम आएगी। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स है नहीं कि वो डिसाइड करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि तो वो इन्फॉर्म करेगी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने को, प्रॉब्लम को जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस होंगे वो प्रॉब्लम्स, वहाँ पे टाइम लग सकता है, और उस पे फिर रेस्पॉन्स आए, फिर वो रेस्पॉन्स वापस आए हमारे लोकल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद फिर वो इंडिविजुअल के पास पहुँचेगी। तो ये रेस्पॉन्डिंग में बहुत ही स्लो होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी टू बिकम डिक्टेटरशिप। ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप भी है, क्योंकि एक ही बंदा पूरी स्टेट को चला रहा है। तो डिक्टेटरशिप में भी यही होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप थोड़ी सी रिजिड होती है, जबकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है इन द फॉर्म। कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ यूनिटी स्टेट्स। अब यूनिटी स्टेट्स कौन सी हैं? इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस, इटली एंड ईरान आर द यूनिटी स्टेट्स। दीज आर यूनिटी स्टेट्स। नाउ आई एम डिफाइनिंग अगेन द थर्ड पॉइंट, यूनिटी इज गुड फॉर स्मॉलर कंट्रीज। हाउ? जबकि ऊपर कहा गया है कि यूनिटी जो फॉर्म ऑफ स्टेट है वो बेहतर है जो कम तादाद में लोग जिस स्टेट में रह रहे हों, जिसकी टेरिटरी थोड़ी हो। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मोस्टली पॉपुलस कंट्रीज हैं, और मोस्टली विद एरिया वाइज ये भी बहुत बड़ी हैं। चाइना को देख लें, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फ्रांस देख लें, फ्रांस बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, टेरिटरी के लिहाज से भी देख लें बहुत ही बड़ा कंट्री है। इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड भी बहुत बड़ी कंट्री है। इटली को देख लें, इटली मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ये 3-4 कंट्रीज हैं जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं और बड़ी स्टेट्स हैं, ये छोटी स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कामयाब भी है। आप देख सकते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं ये 3-4 कंट्रीज, ईरान को छोड़ के। तो ये जो तीसरी पॉइंट है, यूनिटी इज गुड फॉर स्मॉलर कंट्रीज, इज अ नैरोअर पॉइंट एंड इट्स नॉट टू बी वेल क्लेम्ड पॉइंट। कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के मेरिट्स कौन से हैं? मोर स्ट्रेंथन। जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो मोर स्ट्रेंथन होता है। हाउ? लेट मी डिफाइन यू फर्स्ट दिस। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम पाकिस्तान का, कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है सिंध के पास, और सिंध को फिर वो पावर डेलीगेट करना, वो पावर डिस्कस करना है फेडरल के साथ, तो जाहिर सी बात है बहुत टाइम लग जाएगा और उस पर बहुत डिबेट भी होगी। इससे ये बेहतर नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाए और वही उसको डिस्कस करे और वही उस पर फैसला सुना दे, तो ये बेहतर होगा उससे। इसलिए इसे कहा जाता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है मोस्ट स्ट्रेंथन, क्योंकि ये सारे पावर्स इस खुद के पास ही होते हैं और ये सारे फैसले खुद ही करती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि मोर स्ट्रेंथन है एज कम्पेयर टू फेडरल स्टेट्स। मैनिफेस्टेड टुवर्ड्स फॉरेन पॉलिसी, इसकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो ये खुद ही बनाती है। इसके जो सारे पावर्स हैं वो इसके पास ही होते हैं, ये अपने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो इसीलिए ये जो सारे पावर्स हैं वो वेस्टेड होते हैं इसी एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो बना सकती है, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी, इसके पे कोई सवाल नहीं होगा और इस पर कोई भी डिले नहीं होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी इसकी बहुत ही जल्द बना दी जा सकती है, और जैसे बना दी जाए वैसे ठीक रहेगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगा तो उसमें एक ही लॉ होगा। अब जैसे कि हमें देख लें, पाकिस्तान का आप एग्जांपल ले लें,
हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरेशन है हम एक। तो फेडरेशन में क्या होता है कि जो प्रोविंसेस हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो ऑटोनोमस होती हैं, उनके पास पावर्स होते हैं जो डेलीगेटेड होते हैं बाय द लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम बहस कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी डिस्कशंस हो सकती हैं, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ नहीं हो सकती। सिंध में कोई और लॉ होगा, पंजाब में कोई और होगा, बलूचिस्तान में कोई और होगा, केपीके में कोई और लॉ होगा। जबकि अगर यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लॉ होगा जो सारे प्रोविंसेस, सारे लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर इन्फोर्स हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, लेस एक्सपेंसिव। अब जाहिर सी बात है, अगर एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो इसमें बंदे कम लगेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होंगे स्टेट को। अब स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना ज़्यादा बंदों के साथ, तो जाहिर सी बात है वो उनको जॉब पे रखना पड़ेगा, उनकी सैलरी हमारी टैक्सेस में से देनी पड़ेगी, और उसको ये बनिस्बत फेडरेशन के ये लेस एक्सपेंसिव है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कमिंग टुवर्ड्स द फेडरेशन, व्हाट इज द फेडरेशन? डिस्कसिंग द फेडरेशन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फेडरेशन इज अ quotation of Hamilton, who is an American scientist. He says federation is an association of states forming a new one. जो फेडरेशन है वो एसोसिएशन है स्टेट्स की, forming a new one, forming a new state, which he means. अब इस पर कोटेशन को सबसे पहले समझते हैं कि फेडरेशन इज एन एसोसिएशन। हाउ, व्हाट इज एन एसोसिएशन? एसोसिएशन हम कह सकते हैं कॉमन पर्पज को हम एसोसिएशन कह सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिफाइन किया हुआ है इसको, एसोसिएशन को। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑफ स्टेट्स फॉर्मिंग अ न्यू वन, ये एसोसिएशन होती है कुछ स्टेट्स की, 2-3 स्टेट्स मिलकर एक न्यू स्टेट बनाती हैं, इसे हम कहते हैं फेडरेशन। एक ये इसकी कोटेशन भी है और हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन भी है फेडरेशन की। देखते हैं फीचर्स फेडरेशन के। 2 ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट्स, ये जो 2 ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट्स, सबसे पहले हमें डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज एन ऑटोनॉमी, व्हाट वी मीन बाय ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमी मीन्स द सेल्फ पावर्स जो हमारे पास होते हैं, प्रोविंसेस के पास होते हैं। प्रोविंसेस के पास सेल्फ ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने पावर्स खुद ही बनाए और उनको खुद ही एक्सरसाइज करें, उन पे एजुकेटिंग भी उसकी खुद की प्रोविंसेस की ही होती है। ओवर द सम पावर्स, नॉट ऑन द ऑल पावर्स, बट ड्यू टू सम सर्टेन दीज आर ऑटोनॉमस। 2 ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये जो लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये दोनों ही ऑटोनॉमस होती हैं, इन दोनों के पास पावर्स होते हैं। जबकि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये था कि पावर्स वर डेलीगेटेड टू अ लोकल गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें यह है कि जो पावर्स हैं वो डेलीगेटेड हैं बाय द सॉवरेंटी, बाय स्टेट, बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ टू बोथ दीज एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट्स, लोकल यूनिट एंड central government. Coming to the next point, sovereign powers are delegated by constitution. ये जो sovereign powers हैं, ये powers को ना सेंट्रल देता है लोकल गवर्नमेंट को, ना लोकल गवर्नमेंट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो पावर्स हैं वो डेलीगेटेड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉ। स्टेट का जो लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो ये पावर्स डेलीगेट करता है सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट दोनों को। बोथ यूनिट्स आर सुप्रीम इन देयर ओन स्फेयर्स। जबकि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यह था कि लोकल गवर्नमेंट जो थी वो अंडर में आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही थी लोकल गवर्नमेंट। जबकि यहाँ पे दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं ये दोनों सुप्रीम में अपने अपने स्फेयर में, अपनी अपनी एरिया में। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, इसको आसानी से बासानी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे चेंज किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए अमेंडमेंट हो सकती है लेकिन ये लॉ चेंज नहीं हो सकता। अब अमेंडमेंट और लॉ चेंज होने में ये फ़र्क है कि अमेंडमेंट में हम अमेंडमेंट इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ को हम अमेंड करके उसकी एंगल को हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उस लॉ को कभी भी, उस आर्टिकल को हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो अनरिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी भी लॉ को ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी न्यू लॉ को बना सकते हैं। लेकिन ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये अमेंड किया जा सकता है थ्रू द प्रॉपर चैनल 2/3 मेजॉरिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ फेडरेशन इज मेड इट कैन नॉट ग्रो। दिस इज एन important point. Federation is made, it cannot grow. What we mean by federation, can made, it cannot grow.
जो फेडरेशन होती है वो बनाई जाती है बाय विल, वॉलंटियरली ये बनाई जा सकती है, लेकिन इसको कभी भी कॉन्कर नहीं किया जा सकता बाय फोर्स। ये जंग करके फेडरेशन नहीं कायम की जा सकती, जबकि यूनिटी जो होती है वो कायम की जा सकती है जंग के लिहाज से बाय कंपल्शन और बाय एनी अदर फोर्स। लेकिन ये फेडरेशन जो होती है ये वॉलंटियरली होती है। जब 2, 3, 4 या 5 स्टेट्स जो हैं वो स्टेट्स अगर एग्री हो जाएं कि हम एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो फिर ही ये फेडरेशन बन सकती है, अदरवाइज ये फेडरेशन कभी भी नहीं बन सकती। अदरवाइज ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट तो बन सकता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकता है, लेकिन फेडरेशन कभी भी नहीं बन सकती। इसके बाद आता है लिस्ट सिस्टम, फेडरल लेजिस्लेटिव, यूनिट लेजिस्लेटिव एंड कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब ये 3 लेजिस्लेचर्स हैं जो कि हर स्टेट के लिहाज से वेरी करते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव जो होती है ये पावर्स होते हैं टू द फेडरल, यूनिट लेजिस्लेटिव जो होती है ये लोकल गवर्नमेंट और हम कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, जबकि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट जो होती है ये पावर्स होते हैं कभी सेंटर के पास होते हैं, कभी प्रोविंशियल के पास होते हैं। अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो पावर्स हैं क्या और इससे क्या मतलब है। फेडरल लेजिस्लेटिव पावर्स जो होते हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव का मतलब है कि ये जो फेडरल जो भी लॉ बनाएगी, कुछ लॉज हैं जो फेडरल बनाएगी, कुछ लॉज हैं जो प्रोविंस बनाएगा। अब जो फेडरल पावर्स बनाएगा उसे हम कहेंगे फेडरल लेजिस्लेटिव, उस पावर पे एजुकेटिंग भी उसकी होगी, इन्फोर्सिंग भी उसकी होगी और लेजिस्लेचर भी उसी का ही होगा, इसे हम कहते हैं फेडरल लेजिस्लेटिव। अब अगर हम देखें यूनिट लेजिस्लेटिव पे, तो यूनिट लेजिस्लेटिव में जो होता है वो पावर बनाता भी यूनिट है, उससे मतलब है कि जो ऑटोनोमस प्रोविंस है, यानी हम कह सके लोकल गवर्नमेंट खुद ही पावर्स खुद ही लॉ बनाती है, खुद ही लॉ एजुकेट करती है और खुद ही लॉ को इन्फोर्स करती है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती फेडरल की। जबकि कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है वो होती है कि कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो फेडरल और यूनिट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है दोनों साथ मिलकर बनाती हैं, जबकि ये कंकरेंट लेजिस्लेटिव वेरी करता है स्टेट के लिहाज के साथ कि ये कंकरेंट लेजिस्लेटिव किसी स्टेट में यूनिट के पास होता है, कभी फेडरल के, कभी इन दोनों के अंडर में आ जाता है। अब जैसे कि हम देखें हमारे हवाले से बात करें कि पाकिस्तान के, तो कंकरेंट लेजिस्लेटिव जो 18th अमेंडमेंट से पहले था वो फेडरल के पास था और 18th अमेंडमेंट के बाद जो ये कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट है, जो ये पावर्स हैं, ये अंडर में आ रहे हैं यूनिट्स के। इसका हम मिसाल यूँ ले सकते हैं कि इमरान खान ने अभी सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारे कंट्री में एक ही नेशनल करिकुलम होना चाहिए, जो सारा हमारा मवाद है विद रिगार्ड्स टू स्टडीज़ वो सारा एक ही होना चाहिए पूरे कंट्री में। तो इस पे ये इसने लॉ बनवा लिया था और असेंबलीज में से भी पास करवा लिया था, लेकिन इस पे हमारे जो प्रोविंसेस थे वो एग्री नहीं कर रहे थे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो था हमारा सिंध ने कहा कि 18th अमेंडमेंट के हिसाब से ये आपको पावर है ही नहीं कि आप हमारे लॉज में इंटरफेयर करें। आपको किसने कहा है कि आप सिंगल नेशनल करिकुलम बनाएं, जबकि हॉस्पिटल्स और जो एजुकेशन के जो सब पावर्स हैं, जो भी मैटर्स हैं वो हम खुद ही देखेंगे, प्रोविंसेस ही देखेंगे, तो आप इन पे कैसे लॉ पास कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं बन सका था। कमिंग टू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फेडरेशन, सबसे पहले डिमेरिट्स देख लेते हैं कि फेडरेशन के डिमेरिट्स क्या हैं। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, एलोकेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड वैल्यूज मीन्स द रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस पे मोस्टली प्रॉब्लम आता है फेडरेशन में। अब फेडरेशन में होता ये है कि 2-3 स्टेट्स मिलकर ये एक स्टेट बनाती हैं जिसको हम फेडरल स्टेट कहते हैं। अब ये फेडरेशन में, अब मिसाल ले लेते हैं हम एक फैमिली का, अगर एक फैमिली में 4-5 फर्द हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, उनकी चारों की शादियाँ हुई हैं और वो कमाते हैं, एक 1.5 लाख कमाता है, 1 लाख कमाता है, एक 50,000, एक 2 लाख, एक 2.5 लाख और एक 3 लाख कमाता है। ऐसे ही तो जो 1 लाख या 50,000 कमाता है उसकी जो फैमिली है वो बड़ी है, जबकि जो सबसे ज़्यादा कमाता है उसकी फैमिली जो है वो छोटी है। तो फादर तो जो घर का बड़ा होगा वो यही करेगा कि जिसकी फैमिली बड़ी होगी उसको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, ना कि उसकी अर्निंग को देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसे देने भी चाहिए। तो हमारी जो फेडरेशंस होती हैं वो भी यही करती हैं, लेकिन इस पर हमारा एतराज़ होता है हमारे यूनिट्स को, हमारे प्रोविंसेस को, कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो हम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो हम दे रहे हैं, तो हमें ही मिलने चाहिए। जब जैसे कि देखे जाएँ हमारे सिंध और पंजाब के हवाले से, तो पंजाब में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पंजाब के पास
बहुत ही बजट जाती है, जबकि सिंध के पास कम जाती है। और जो टैक्सेशन के हिसाब से देखें तो सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स देता है चारों प्रोविंसेस में से। तो इसीलिए सिंध क्लेम करता है कि सबसे ज़्यादा मुझे देना चाहिए टैक्स, जो हमारी बजट है वो मुझे मिलनी चाहिए। जबकि पंजाब कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए, कि पॉपुलेशन मेरे पास ज़्यादा है तो इनसे जो मुझे मिल रही है इससे भी ज़्यादा मुझे मिलनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होता है एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ का। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फेडरेशन इज सोर्स ऑफ वीकनेस ऑफ स्टेट। अब ये वीकनेस ऑफ स्टेट को कैसे, जैसे हम देख लें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सिंगल नेशनल करिकुलम का, या कोई और लॉज को हम देख लें फाइनेंशियल लेवल पे, या पावर्स को देख लें हम लेजिस्लेचर के हवाले से। तो जो पावर जो फेडरेशन कहेगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं करेंगी, जो लोकल गवर्नमेंट्स करेंगी वो फेडरेशन नहीं करेगी। तो इस पे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इसीलिए ये वीक भी हो जाती है। कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ फेडरेशन, मेरिट्स क्या है फेडरेशन की? फेडरेशन ब्रिंग्स यूनिफिकेशन, स्ट्रेंथ, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द स्मॉल स्टेट्स। अब जबकि फेडरेशन जो है वो यूनियन है, वो एसोसिएशन है मुख्तलिफ स्टेट्स की, 2, 3, 4, 5 या 6 कितनी भी स्टेट्स मिलकर एक स्टेट बनाती हैं, उस स्टेट को हम फेडरेशन कहते हैं। तो अगर वो 3-4 स्टेट्स मिलकर एक स्टेट बनाएंगी तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेंथन होगी, वो मोस्ट पावरफुल होगी, वो प्रोग्रेसिव भी होगी। किसी स्टेट में किस चीज़ की ज़्यादा होगी प्रोडक्शन, किस स्टेट में किस चीज़ की ज़्यादा होगी प्रोडक्शन, और किसी चीज़ में वो प्रोविंस टेक्नोलॉजी में, वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी और चीज़ में आगे होगी तो वो किसी और चीज़ से वो ले लेगी। तो इस वजह से ये मोस्ट स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेसिव बन सकती है। जब इस लिहाज से इस पर प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं फेडरेशन ब्रिंग्स यूनिफिकेशन, स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्मॉल स्टेट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ओनली वे बाय व्हिच द होल वर्ल्ड कैन बी यूनाइटेड इनटू अ सिंगल स्टेट। ये एक ही वे है, फेडरेशन एक ही वे है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो भी स्टेट्स हैं ये एक फेडरेशन बना सकते हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता, अगर हो जाए तो मोस्टली हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, कोई हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो ये एक आइडिया है कि जो फेडरेशन है वो पूरी दुनिया की जो भी स्टेट्स हैं उसको बना के एक हम फेडरेशन भी बना सकते हैं।